द नेक्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर है ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में इंक्लूड किया हुआ आपको बहुत कम एग्ज़ाम में मिलेगा, लेकिन इसके नॉलेज के बगैर अपन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स और नॉन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स ये अच्छे से पढ़ नहीं सकते। कहीं पे भी कभी भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है, इसलिए अपन ने अपने करिकुलम में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर इंक्लूड किया है, क्योंकि एज ए होल स्टडी करने के बाद में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक सिविल इंजीनियर को पता रहना चाहिए, इस हिसाब से ही पूरा अपन ने सिलेबस इसको बना के ये आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। आप में से कई लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर उसके बारे में क्लियर आइडियाज़ नहीं होगी, कुछ कंसेप्ट, कुछ टेक्निकल टर्म्स, इसलिए ये चैप्टर भी उन्होंने ये स्टडी कर लेना चाहिए। You know, moment of a force. I am going to write the equation for moment of a force. You know, moment of a force, when there is a force here of any magnitude F, and suppose this is the point O at which we have to take moment, for which I have to drop a perpendicular here and measure this perpendicular distance, then we are able to write moment is equals to F into D. This is moment of a force about O. Okay. Now, similarly, I am going to write here now moment of a area. Similarly, moment of a area. Suppose this is any lamina and any axis I can consider here. Centroid of this area is at a distance D. This I have considered here. D is the perpendicular distance from this axis to the centroid D, and area of this figure is supposed to be A. Then the equation I can write here A into D. Those A into D means it is the moment of area. This moment of area is called first moment of a area. First moment of a area. It is also called section modulus. Section modulus. How to read first moment of area? It means moment of a area. It is also called section modulus. Section modulus is denoted by Z. ये अपन बाद में और देखने वाले हैं, Z. Okay. Now, similarly, I am going to write this statement here. You see, moment of A. Moment of a area. You notice here, this is moment, and now here moment of area. A moment of area is this one. So the statement in mathematical form I can write here A into D is the moment of area. Again I have to take moment. So here I have to multiply by D. So this A into D is called
second moment of inner area. Second moment of area. It is second moment of area. ये कौन सी थी? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. ये डबल किया अपन ने उसको और मोमेंट लिए, मोमेंट को मोमेंट लिया, तो सेकंड मोमेंट. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ inertia. Moment of inertia. And this moment of inertia is, I can write mi or simply I. Letter I, capital I, used to define moment of inertia. This is also called torsion constant. This is also called torsion constant. तो मैंने अभी बताया था आपको, कुछ टर्म्स जो है ये अपने को पता रहना चाहिए. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये भी एमसीक्यू बन सकता है. इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. First moment of area is nothing but it is section modulus. And another name that you have to remember, torsion constant is also called moment of inertia. What will be the unit? Unit, here you know area having unit meter square. Then multiply by distance again square. So the distance and square of it. So here it is m raised to 4. Similarly, I can write mm raised to 4. These are the units we can use for moment of inertia. The moment of inertia for rectangular section, equation that we use regularly, BD cube by 12, वो इक्वेशन कैसे आता है ये मैं आपको थ्योरेटिकली यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा हूँ. बाकी जो सेक्शंस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज जो है इसी मेथड से निकाली गई है, तो मैं उसको डायरेक्टली आपको अवेलेबल करके दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो. हियर दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग डायमेंशन width b and depth d here. Then I have taken here a strip, एक ऐसी स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस जो है ये वेरी स्मॉल है. अब ये एक्सिस यक्स है, सेंटर में से जा रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस. हियर आई हैव रिटन d by 2, टोटल डेप्थ d, and here d by 2. It means it is passing through center, CG, सेंट्रोइडल एक्सिस. अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो गिनेंगे वो अपने को वर्टिकल एक्सिस पे गिनेंगे. सो हियर आई राइट वाई. स्ट्रिप जो है ये वाई डिस्टेंस पर है और उसकी जो थिकनेस है यहाँ पर ये है स्मॉल dy. dy इज द थिकनेस. नाउ हियर आई कैन राइट एरिया ऑफ स्ट्रिप. स्ट्रिप की एरिया क्या होगी? विड्थ है b और dy. स्ट्रिप की जो विड्थ है ये b रहेगी और थिकनेस जो है dy, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एरिया. अभी अपन ने देखा है मोमेंट निकालना है एरिया की, फर्स्ट मोमेंट. दोबारा फिर से मोमेंट लेंगे उसी की, तो सेकंड मोमेंट. एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द सेम प्रोसीजर आई एम गोइंग टू फॉलो हियर. सो हियर आई एम गोइंग टू फाइंड राइट डाउन मोमेंट ऑफ ए एरिया और सिंपली मोमेंट ऑफ एरिया. ये क्या हो गई? b into dy is the area and it is to be multiplied by y. y is the
distance of the strip from the x-axis. So moment of area about x-axis. So I have not written that. So here I can write about x-axis is equals to b dy and multiply by y. This is moment, and it is nothing but section modulus or first moment of area. Again, this is first step, second and third step. I am going to write here moment of area. ये मोमेंट और बाद में मोमेंट ऑफ एरिया. It means moment of inertia, that is equals to, and here also about x-axis. कौन सा एक्सिस? x एक्सिस से. So b into dy multiply by y is the first moment, and again multiply by y. Okay, so here y, ये फर्स्ट मोमेंट और ये y से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मोमेंट, and this is the equation of moment of inertia. So I can write here b y square and dy. This is the equation available. Now here y varies from 0 to d by 2. ये स्ट्रिप जो है ये 0 पे आएंगे सेंट्रोइडल एक्सिस पे, और वहाँ से मूव करते करते अपन ये एज तक लेके जा सकते हैं. सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 to d by 2. So here moment of inertia is equals to integration b y square dy. This is basic equation, and varies 0 to d by 2. When I use this equation for computing moment of inertia, it means I have considered half of the rectangle only, क्योंकि 0 से d by 2. But here I have to find moment of inertia of complete rectangle. So here it is for half rectangle, and for complete rectangle it is to be multiplied by twice. Then 0 to d by 2 b y square and dy. B is the constant, and directly I am going to write here 2b, and integration of y square will be y cube divided by 3, and here limit will be 0 to d by 2. When I put the value of y is equals to d by 2, 2b, and here d cube divided by here 3, then 8. Okay, now when you simplify this 2 will cancel here, 2 here it will be 4, so b d cube by 12. This is the moment of inertia about x axis. Similarly, moment of inertia about y axis. If I consider y axis, then we have to replace b by d or d by b. बराबर, बाकी सब ऐसे ही रहेगा. ये स्ट्रिप ऐसी अगर मूव करेंगे तो ये y की जगह x होगा, dy की जगह dx होगा, तो ये रिवर्स होगा. सो हियर आई हैव टू राइट db cube by 12. This is the moment of inertia of rectangular section about y axis. How to remember this? Otherwise इसमें तो बहुत confusion होगा. bd cube by 12, db cube by 12, कौन सा xy x axis,
वाई एक्सिस। इसमें सिंपल है ध्यान में रखने के लिए, अगर कोई भी एक रेक्टेंगल है तो एक ही चीज ध्यान में रखना है, बी डी क्यूब बाय 12। ये बी डी क्यूब बाय 12 क्या है? बी इज द डायमेंशन, बी एन ए कौन सा डायमेंशन? द डायमेंशन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकन। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है तो इसका पैरेलल डायमेंशन कौन सा होगा? ये, तो इसको बी लेना है, ये बी। बी इज द पैरेलल डायमेंशन टू द एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकन। अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में मैं बता रहा हूं आपको, ये रेक्टेंगल है, यहां पर 3 और ये डायमेंशन है 5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis, the basic equation that you have to use b d cube by 12, यही ध्यान में रखना है, db cube by 12 ध्यान में नहीं रखना है। अब यहाँ क्या बताया गया है? y एक्सिस। तो इस रेक्टेंगल का y एक्सिस बोले तो ये हो गया। y एक्सिस को जो पैरेलल डायमेंशन है, ये y एक्सिस है अपना, इसको पैरेलल डायमेंशन जो है ये 3 है, दैट वी हैव टू कंसीडर एज ए b, उसको b लेना है। तो 3 और दूसरा जो है 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इन दिस वे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज, रिमेंबर ओनली बी डी क्यूब बाय 12। दोबारा मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशंस ये 2 है और ये मान लो 6 है। ओके, अब यहां दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल लो। तो पहले ये एक्स एक्सिस, बेसिक इक्वेशन बी डी क्यूब बाय 12, यही ध्यान में रखना है, वही बताया मैंने। अब ये b जो है, b इज द डायमेंशन पैरेलल टू दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल जो है, उसको पैरेलल डायमेंशन ये है 2, सो आई हैव टू राइट हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इन दिस वे। आ गया ध्यान में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन की ये कई बार लगने वाला है, तो इसका ये बेसिक जो है ये ध्यान में अगर रहा आपने तो ये बेटर रहेगा। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये टर्म्स खास करके स्टील स्ट्रक्चर्स में बहुत काम आने वाली है, तो इसका एक मीनिंग ये है क्या, ये लर्न होना जरूरी है। रेडियस ऑफ गायरेशन means what? Suppose this is any area. Here different elements I am going to consider. This is a small area A1, another small area I consider here A2, and here a small area A3. For example, I have considered these 3 areas. Here this is any axis, it is supposed to be axis x. The perpendicular distance of x and element, here I will consider d1, or I can consider y also, there is no problem, y ले सकते अपन। एलिमेंट नंबर 1 है इसलिए फिर y1। दूसरा जो एलिमेंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y2, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y3। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन राइट I a1 y1 and square of it as per the definition of moment of inertia. It is the second moment of area plus
A2, Y2 and square, A3, Y3 and square, so on, and finally I can conclude to it is nothing but area and y square. Likewise. So in this way I can find out moment of inertia of complete figure. For example, I write down the value for here 100 mm raised to 4. एक अपन ने वैल्यू ले ली है, इतनी ये वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये कैलकुलेशन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है A1, A2, A3, इनका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ये वेरी हो रहा है, ये Y1, ये Y2, Y3. अब इन जो एलिमेंट्स है छोटे छोटे, इसको ऐसे रीअरेंज करना है कि सभी एलिमेंट्स एक ही डिस्टेंस पे रहे, सेम डिस्टेंस पे रहे इस एक्स एक्सिस से. इट इज पॉसिबल. सो हियर आई एम गोइंग टू रीअरेंज. दिस इज आवर एक्स एक्सिस और सभी एलिमेंट्स को मैं यहाँ रख रहा हूँ लाइक दिस. यही लंबी लाइन रहेंगी, इतने से होने वाली है लंबी. तो सभी एलिमेंट जो है मैंने ऐसे अरेंज किए हैं कि उनका जो डिस्टेंस है ये सेम रहे सबका. एंड सपोज इट विल नॉट बी वाई बाय और y1 y2 अगर नहीं, एक रहेगा तो उसको लेंगे अपन k. अब यहां क्या करना है, दिस इज अल्जेब्रिक सम ऑफ स्मॉल एरिया. A1 A2 सबके एरिया निकाल सकते हैं और बाद में k से मल्टीप्लाई करो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन राइट समेशन A and k square. Okay, so here we will get the value of moment of inertia. सभी एक एक एलिमेंट को जोड़ते जाओ, टोटल एरिया मिलेगा. इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे वो सभी एलिमेंट जो है, इक्वल डिस्टेंस रहेंगे, ये भी सेम k. ओके, लाइक दिस k, all elements having same distance k, पॉसिबल है. अब ये वैल्यू इतने ही रहना चाहिए. एक एग्जांपल दिया था मैंने 100 mm रेज़ टू 4, तो उसका भी 100 mm रेज़ टू 4 आना चाहिए. बराबर है, आ गया. अब अगर ये सेम हो जाता है, सो दिस k is the distance at which all elements are arranged or all elements have equidistance from that axis, and that equidistance is called radius of gyration. The radius of gyration I can define. The radius of gyration of a given area is that distance here, is that distance from the given axis, at which entire area is assumed to concentrated. ये concentrated हो गई, concentrated without changing the moment of inertia about the given axis. जो axis ये था वही moment of inertia इस axis पे लेंगे, and that distance is called radius of gyration. Radius of gyration, here the equation I can write, I is equals to, in simple form, area is the total area and the distance square. So for any section, for any area, we can find out the value of k. It is very simple. First of all, we have to calculate moment of inertia. Then area of that section is also we can calculate.
So if moment of inertia is known to us, area we can calculate, then we can find out the radius of gyration, and it is equals to I by A and under root. The same equation I have transferred here. Okay, so this is the equation. You can remember this equation और दिस वन, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप याद रख सकते हैं. आई थिंक बेटर टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बिकॉज इट इज द इक्वेशन रिलेटेड टू आवर बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ए इंटू वाई स्क्वायर के जगह पे के स्क्वायर लेना है, इतना ही है. तो इट विल बी इजी एंड देन वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन. यूनिट एज रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज डिस्टेंस. So distance means the unit will be meter or mm. I am not writing centimeter. The centimeter was used in case of MKS system. अभी अपनी SI सिस्टम है, इसलिए मीटर और mm इज इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, सेंटीमीटर नहीं है. इसलिए मैं मैक्सिमम जगह पे मीटर और mm ही लिख रहा हूँ हर जगह. ओके, सो मीटर और mm बिकॉज इट इज नथिंग बट लेंथ. दिस इज लेंथ. सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. नेक्स्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्या होता है? दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर फॉर्मूला. Basically, it is used to transfer moment of inertia from one axis to the another axis. यानी एक एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है, जो भी सेक्शन है उसका सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो दूसरे किसी भी एक्सिस कितने भी डिस्टेंस पे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उसमें कंडीशन एक ही है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसको दूसरा जो एक्सिस है वो पैरेलल रहना चाहिए. हियर दिस इज द लैमिना एंड द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दिस लैमिना, दिस इज सेंटर. फॉर एग्जांपल, दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस x and it is CG. The axis which is passing through CG of the area or lamina is called centroidal axis, about which the moment of inertia is known to us. अपने को ये पता है, ऐसा मानते हैं. अब दूसरा जो एक्सिस है ये मैंने एज्यूम किया है, ये एक्सिस दोनों पैरेलल है. दिस एक्सिस आई कॉल AB. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अभी जो निकला था ना रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फार्मूला अपन ने, BD³/12 कुछ वैल्यू आएंगी, वो है सेंट्रोइडल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस. तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रहेंगी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. सो आई कैन राइट ICG. It is known to us. And now here I have to calculate moment of inertia about AB axis. AB axis पे निकालना है. The distance between these two axes is supposed to be h. मान लो h है, और जो लैमिना है उसका एरिया है A. Okay, so as per parallel axis theorem, the equation I can write here IAB is equals to ICG plus A and H square. This is nothing but the parallel axis theorem.
it is the parallel axis theorem. This equation itself is parallel axis theorem. डेफिनेशन तो देखेंगे. अब इसमें एक चीज देखो आप, इन दोनों में से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये ICG रहना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ICG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. ये क्यों बताया मैंने? अगर मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज नोन टू अस, ये पता है, और क्वेश्चन आस्क किया है फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सपोज टू बी एनी CD और एनी AB. क्वेश्चन क्या है? ये ट्रायंगल है, वर्टेक्स में से जो एक्सिस पास हो रहा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है यहाँ पर, इट इज नोन टू अस. और पूछा गया है इसको, ये पैरेलल एक्सिस है, अब इस पैरेलल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी रहेंगी. इन दिस सिचुएशन वी कैनॉट यूज दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन अपन यहाँ यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये एक्सिस भी सेंट्रोइडल नहीं है और ये भी एक्सिस सेंट्रोइडल नहीं है, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस जो है ये रहेगा. एनी दिस एक्सिस आई कैन से एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज CD. इन दिस सिचुएशन व्हाट आई हैव टू डू, मेरे क्या करना पड़ेगा? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस. ये दो एक्सिस लेंगे, है ना, ये वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये पता है, इससे ये निकल जाएंगे. जैसे ही ये वैल्यू निकल जाती है तो ICG अपने को पता हो गया. ICG अगर पता है तो अपन अब ये दोनों एक्सिस में एक फिर से थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो इसकी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. सो इन दिस वे वी हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर ट्रांसफरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया from one axis to another. Only the condition is that in this equation one moment of inertia should be of moment of inertia about the centroidal axis. centroidal axis की रहना चाहिए. अब ये दो अगर है तो ये centroidal axis हो गए, है ना, तो ये अननोन रहेगा, ये नोन है, ये वाला है कि नहीं. ये अगर पता है तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएंगी. ये ICG है तो ICG निकल जाएगा. फिर से अब ये दो एक्सिस अगर लेंगे अपन, तो यहाँ पे ये पता है, ये है सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंट्रोइडल एक्सिस की ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट होंगे, बराबर है, और ये वैल्यू बोले तो ये हो जाएगी. तो ये अपन इन दिस वे वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल में और ये आपको बताया जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. डेफिनेशन अब क्या है, इसी स्टेटमेंट को ओन लैंग्वेज में अपने को डिफाइन करना है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट इज वेरी सिंपल. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस, मैंने क्या बताया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू moment of inertia of the section about centroidal axis plus the product of area of section and square of the distance between two axes. इसका स्क्वायर करना है. The same mathematical statement I have read in sentence form. आप अपने लैंग्वेज से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसी को लिखना है. नेक्स्ट टर्म इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. हियर सपोज दिस इज एनी लैमिना, द एक्सिस y, this one is x axis, and third one which is mutually perpendicular to this x and y, it is called z axis. And this lamina may have area A. So perpendicular axis theorem का स्टेटमेंट क्या है?
बहुत सिंपल है. If you know the moment of inertia about the x-axis and y-axis, then moment of inertia about the z-axis will be equals to Iz. Moment of inertia about z-axis is equals to Ix, or simply I can write Iz, Ix plus Iy. This is the statement given by the perpendicular axis theorem. इसको डिफाइन क्या करना है? इट इज वेरी सिंपल. इफ Ix and Iy are the moment of inertia of a plane section about two mutually perpendicular axes meeting at O, here meeting at O, then moment of inertia about the axis which is perpendicular to these two axes, that is Z axis, is given by this equation. Okay, so moment of inertia x axis plus y axis करते हैं तो z axis हो जाएंगे. It is also called polar moment of inertia. This is called polar axis. इसको बोला जाता है जेड यानी पोलर एक्सिस. ये कुछ लोगों के लिए नई टर्म हो सकती है, पोलर एक्सिस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन πd⁴/64, ये मैंने अभी बताया तो नहीं है, लेकिन ये बार बार यूज होता है टॉर्शन में और कुछ चैप्टर्स में, इसलिए मैंने एग्जांपल ही लिया है. अब ये होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्स एक्सिस. अब सर्कुलर सेक्शन अगर है तो एरिया जो है ये सिमेट्रिकल रहेगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की. सो आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई. दैट्स वाई आई कैन राइट हियर πd⁴/64. When you solve, you will get πd⁴/32, and this is the moment of inertia about the z-axis, is also called IP. Here IP means polar moment of inertia, and this is IZ means moment of inertia about the z-axis. It is the summation of moment of inertia about the x-axis, moment of inertia about the y-axis. ये दो निकालना है, उनको जोड़ना है. You will get polar moment of inertia or moment of inertia about the z-axis. Now we see about section modulus. Section modulus. There are two types of section modulus. One is elastic section modulus, then plastic section modulus, and relation between this elastic section modulus and plastic section modulus is represented by shape factor. Okay. Now section modulus. Section modulus means what? It is just geometric property of the cross section. It does not depend on the material property. जो भी फिगर है, फिगर की साइज एंड शेप जो है, इसके ऊपर ये डिपेंड होती है सेक्शन मॉडुलस. और इसका मेन यूज जो है ये सेक्शन मॉडुलस का बीम यानी फ्लेक्सुरल मेंबर डिजाइन करने के लिए. कोई भी बीम डिजाइन करते समय अपन सेक्शन मॉडुलस का यूज करते हैं. दिस इज मेन यूज ऑफ सेक्शन मॉडुलस. इट इज रिलेटेड विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया basically. Okay, so here section modulus means this one, elastic section modulus. It is mainly depend on moment of inertia. That's why we have considered this section modulus in this topic. Okay, the section modulus ध्यान में आ गया होगा. It is just geometric
property of the cross section. It does not depend on material. और इसका यूज होता है फ्लेक्सुरल मेंबर डिजाइन करने के लिए। इसके दो टाइप है, एक इलास्टिक एंड दूसरा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली जेड एवरीवेयर, जेड, एंड हियर जेड ई आई हैव रिटन हियर because I have to explain plastic section modulus. That's why. Otherwise, we have to represent section modulus or modulus of section. It is Z only. वही ना, Z ही रहेगा अपना। सिर्फ यहाँ पे दो रिप्रेजेंट करना है तो दोनों का एक सफिक्स एक ही हो जाएगा, Z Z। तो मैंने इसको थोड़ा ZD और ZP ये रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। सेक्शन मॉडुलस मीन्स व्हाट? It is the ratio of moment of inertia to the extreme fiber distance. यानी ये है क्या, Z is equals to ratio of moment of inertia about neutral axis. Moment of inertia about neutral axis divided by, we use suffix y, extreme fiber distance. Suppose this is any lamina and here centroid, then this is the axis passing through centroid, I can say x, neutral axis में से पास होने वाला axis, okay। अब ये जो है distance, this is extreme fiber, ये फाइबर रहेंगे ऐसे, ये फाइबर ऐसे 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 ऐसे, ये सबसे दूर वाला फाइबर रहेगा, that is y। इसमें अगर दोनों अलग है, ये y1 है ये y2 है, तो स्ट्रेंथ निकालते समय मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्सट्रीम, सपोज हियर y1 इज ग्रेटर देन y2, y1 की वैल्यू ज़्यादा है y2 से, इन दैट केस आई हैव टू पुट हियर y1, ओके। So extreme fiber distance we have to consider here for computing section modulus. It is here. This is one definition. ये तो समझ में आ गई होंगी definition, I by y means section modulus. दूसरी एक definition, अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेस जो बाद में लेना है अपने को, बेंडिंग फार्मूला या फ्लेक्चर फार्मूला, लेकिन कभी MCQ में सेंटेंस अगर दिया रहा तो उस वक्त आपको आंसर क्लिक कर होना चाहिए, इसलिए दूसरी डेफिनेशन भी बनती है यहाँ पर। दिस इक्वेशन ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये पता होगा, अपने स्टूडेंट नए स्टूडेंट अगर है तो उनको बाद में बेंडिंग स्ट्रेस के टाइम में ये इक्वेशन आने वाला है। m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, एक ये इक्वेशन, इस पे से ही अभी यहाँ ज़्यादा तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ अभी। यू सी m is equals to, now I can write sigma and I by y, बराबर है, ये I इधर लेके गया मैं। Now we know I by y means z, so here ये और ये दोनों को साथ में देखिए आप, z is equals to m by sigma, m by sigma। So section modulus can be defined as moment of resistance to the yield stress, or it is bending stress. Moment of resistance to the yield stress is also called section modulus. ये MCQ में थोड़ा सा फार्मूला आपको पता है या नहीं, ये चेक करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन जो है यही है, ये सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है ये। देन वी गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और शेप फैक्टर, ये स्टील स्ट्रक्चर्स में एक प्लास्टिक एनालिसिस चैप्टर है, तो वहाँ पर ये डिटेल होने वाला है, ओके। सो यहाँ पर सिर्फ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये सेक्शन मॉडुलस है और ये भी सेक्शन मॉडुलस ही है, इसलिए मैंने इसको लिया है, अदरवाइज इसका यहाँ पर इस चैप्टर में काम नहीं है।
ये अपने को लगने वाला है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में। वहाँ पे सेपरेट चैप्टर है प्लास्टिक एनालिसिस, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें लगने वाली है। मैं सिर्फ ब्रीफली इसको ये क्या है बताऊँगा, तो ये रिवाइज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। PNA इज इम्पॉर्टेंट, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। दिस PNA मीन्स इट इज नथिंग बट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या होता है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है, न्यूट्रल एक्सिस मीन्स द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड वेयर द स्ट्रेसेस आर जीरो। ये बेंडिंग स्ट्रेस का है, बेंडिंग स्ट्रेस में ये और क्लियर हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस क्या है। तो न्यूट्रल एक्सिस के बगैर आगे जा नहीं सकते बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में। ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये इसका यूज उधर है। अभी बेंडिंग स्ट्रेस का आगे चैप्टर में यहाँ ले लूँ तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बगैर बेंडिंग स्ट्रेस अपन आगे नहीं जा सकते, है ना। इसलिए ये थोड़े मिक्स है चैप्टर्स, एक रिवीजन में फिर ध्यान में आ जाएंगे इधर का उधर। ओके, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये PNA न्यूट्रल एक्सिस ये है क्या? ये अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर शेप है बीम का वगैरह, ये एक एक्सिस निकाल लिया मैंने। यहाँ पर जो एरिया है, अगर यहाँ पर इस एरिया में स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं, वी नो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया इज फोर्स। यहाँ पर ये एरिया है, एरिया अंडर कंप्रेशन बोलेंगे अपन इसको, इसमें कंप्रेसिव फोर्स है, इसमें टेंसाइल फोर्स है, एरिया इंटू टेंसाइल एरिया 80। ओके, ये एरिया टेंसाइल एरिया। P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा मीन स्ट्रेस। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा ये कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, और यहाँ फोर्स डेवलप होगा टेंसाइल। अगर कंप्रेसिव इधर है तो बस राइट बताए तो टेंसाइल डेफिनेटली इधर बताना होगा, ये टेंसाइल फोर्स। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, C इज इक्वल टू T। So to get C is equal to T, if stresses are constant, stresses are constant, what happens? AC will be equals to AT. ओके, अब ये जैसे हो जाएगा और बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस से निगड़ित है। ये अभी सिर्फ फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि ये एक्सिस ऐसा है कि जो एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई T सेक्शन है, बराबर है, ये T सेक्शन में कंप्रेशन जोन का एरिया यानी ये एरिया और ये नीचे वाला टेंसाइल एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल रहना चाहिए, ये एरिया और ये एरिया। ये दोनों एरिया इक्वल लाने के लिए जहाँ से लाइन निकलना है, दैट लाइन, अभी समझने के लिए, दैट लाइन इज अवर PNA, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, दोनों एरिया इक्वल लाने के लिए। ओके, नाउ ये तो हो गया PNA। अब अपने को चाहिए प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज व्हाट? It is the summation of or sum of product of compression area and centroid of that compression area from the PNA plus tensile area multiplied by centroid of that tensile area. What is that? Here, suppose this is centroid, this is centroid. This distance here, I say this distance, I say YC means centroid of this compression area from PNA, from neutral axis, and this centroid is YC. So here ZP means what? Compression area, sum of compressive area or compression area multiplied by centroid of that area from the neutral axis। यहाँ से ये centroid जो है इसका multiplication प्लस
ये है एरिया इन टेंशन जोन एंड मल्टीप्लाई बाय वाई टी, सेंट्रोइड ऑफ दिस एरिया फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस। अब ये रेक्टेंगल है तो दोनों सेंट्रोइड वगैरह है, लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया का ये सेंट्रोइड अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, है ना। ये एरिया इंटू ये सेंट्रोइड, ये एरिया इसका सेंट्रोइड यहाँ से डिस्टेंस, ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा। दिस इज नथिंग बट प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब शेप फैक्टर, शेप फैक्टर क्या है? शेप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ जेड ई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू दी ZP means plastic section modulus. It is shape factor. Shape factor. Shape factor is the ratio of these two moduli, section modulus. Elastic section modulus divided by plastic section modulus is shape factor. These two things we will see in detail in plastic analysis in steel structure subject में. Okay. अभी फिलहाल अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से ये काम का है, और इसका जो ज़्यादा डिटेल जो है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से, ये चीज़ें अपन बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके।